Hello everyone, this is Tyagi and today I am going to explain the second part of the chapter Two Stories About Flying. The second part is Black Aeroplane, which is written by Frederick Forsyth. The full name of Frederick Forsyth is Frederick McCarthy Forsyth, who is born in 1983 and is about 85 years old. He is an English novelist and journalist. He is best known for thrillers, and the famous book is The Day of the Jackal. By 2006, he had sold more than 70 million books in more than 30 languages. The theme of the chapter is the story oscillates or shift between miracle and mystery. जो हमारी स्टोरी है वो मिरेकल और मिस्ट्री के बीच में शिफ्ट हो रही है. Trust the unknown and the fine line between reality and illusion. There is a great difference between reality and illusion. The narrator of the story is a pilot. It was the time of nightfall. The moon was coming up in the east behind the narrator. It means जो इस कहानी के नरेटर है वो एक पायलट है और जो समय है वो रात का टाइम है और जो मून है वो ईस्ट डायरेक्शन से निकल रहे हैं जो कि नरेटर के पीछे से यानी कि नरेटर वेस्ट डायरेक्शन में है. No clouds in the sky and stars were shining. It means the sky is quite clear. आसमान बिल्कुल साफ है and the stars were shining in the sky. Narrator was happy to be alone high up above the sleeping countryside. Countryside means village area. जो narrator है he was very happy. पायलट बहुत हैप्पी है क्योंकि कंट्री साइड में जहां सब लोग सोए हुए हैं नरेटर अकेले ऊपर आकाश में अपने एरोप्लेन को फ्लाई कर रहे हैं. Was flying his Dakota aeroplane from France to England. वो अपने Dakota एरोप्लेन को फ्रांस से इंग्लैंड के लिए जा रही है. Dakota is the name of the plane. He looked at his watch. Narrator अपनी वॉच को देखते हैं to know the time and it was the time of 1:30 a.m. यानी कि 1:30 a.m. मॉर्निंग का टाइम है. The narrator was dreaming of a holiday and to spend time with his family. जो नैरेटर है और पायलट है वो एक सपना देख रहे थे कि अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे स्पेंड करें और उनके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताएं. He thought he should call to Paris control, बट उससे पहले उन्होंने सोचा कि उन्हें पेरिस कंट्रोल कॉल करके रिपोर्ट कर देना चाहिए. He saw lights of big cities in front of him. उन्होंने देखा कि उनके सामने बड़े शहरों में लाइट्स ऑन हो रखी है as it is the time of night. He switched on to radio and reported Paris control. अब उन्होंने अपना रेडियो ऑन किया और पेरिस कंट्रोल रूम में रिपोर्ट किया. Dakota DS088 here. Can you hear me? उन्होंने बताया कि Dakota DS088 here. It is the code of the aeroplane. कि Dakota DS088 की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ. क्या आप उन्हें सुन पा रहे हैं? रेडियो आंसर DS088 they could hear. रेडियो ने आंसर किया yes 088 को वो सुन पा रहे हैं. And he ought to turn 12 degree west now. The Paris control suggested the pilot. उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न कर लेना चाहिए. The narrator checked map and compass and turned his Dakota 12 degree west. अब जो नैरेटर है उन्होंने पहले मैप चेक किया देन कंपास चेक किया और उसके बाद अपने डेकोटा एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न कर दिया. The narrator thought to have good English breakfast in England. नैरेटर जो है उसने सोचा कि वो अब हॉलीडे स्पेंड करेंगे इंग्लैंड में जाकर के और एक हेल्दी बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट प्रॉपरली वो अपने घर पर करेंगे. Everything was going well. सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था. The sky was clear. Everything was good. The pilot left Paris 150 किलोमीटर behind. और अब वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुके थे. He saw clouds, storm clouds. अचानक से उन्हें अपने सामने बहुत सारे क्लाउड्स दिखाई दिए. Not only clouds, storm clouds. क्लाउड्स का जो एक स्टॉर्म था वो आ रहा था. He could see huge clouds like black mountains. ये जो huge clouds थे, clouds बहुत बड़े बड़े थे और वो just like the black mountains. ऐसा लग रहा था बहुत बड़े बड़े black color के mountains हैं.
ही न्यू ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। ऑथर जानते थे कि वो उस जो क्लाउड्स थे उनके ऊपर से भी नहीं जा सकते थे और नीचे से भी नहीं जा सकते थे। एंड ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अक्रॉस नॉर्थ एंड साउथ। उनके डेकोटा एरोप्लेन में इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो नॉर्थ डायरेक्शन से कवर करके चले जाए या साउथ डायरेक्शन से कवर करके चले जाए। ही थॉट टू गो बैक टू पेरिस। एक सेकंड के लिए उन्होंने सोचा कि इट्स बेटर टू गो बैक टू पेरिस, कि अच्छा रहेगा कि मैं पेरिस वापस चला जाता हूँ, लेकिन वो घर भी जाना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू टेक रिस्क। इसलिए ऑथर ने डिसाइड किया कि ही विल टेक रिस्क, कि मैं एक रिस्क लूंगा और स्टॉर्म्स के बीच में से ही अपने एरोप्लेन को लेकर के जाऊंगा। द नैरेटर फ्लू हिज ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द क्लाउड्स। और नैरेटर ने अपना जो डेकोटा एरोप्लेन था उसको क्लाउड्स के बीच में ले गए। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। क्लाउड्स के अंदर जाते ही सारी चीजें अचानक से ब्लैक हो गई एंड द ऑथर couldn't see anything। जो नैरेटर है उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ओल्ड डेकोटा जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द स्टॉर्म। अब जो डेकोटा एरोप्लेन था वो ओल्ड था, पुराना था, वो जंप और ट्विस्ट करने लगा स्टॉर्म में। द नैरेटर लुक्ड फॉर कंपास एंड couldn't बिलीव। अब नैरेटर ने सोचा कि कंपास को चेक किया जाए, बट ही couldn't बिलीव हिज आईज। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड अराउंड, क्योंकि जो कंपास थी वो राउंड एंड राउंड टर्न कर रही थी, बिकॉज इट वॉज डेड, उसने वर्क करना बंद कर दिया था। अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी साथ साथ डेड हो चुके थे। द नैरेटर वॉन्टेड टू कॉन्टेक्ट पेरिस कंट्रोल बट गॉट नो आंसर। नैरेटर ने पेरिस कंट्रोल बात करने की कोशिश की, बट वहां से भी कोई रिप्लाई नहीं भी मिला, बिकॉज द रेडियो वॉज नॉट वर्किंग। द नैरेटर वॉज लॉस्ट इन स्टॉर्म। जो नैरेटर था अब वो तूफान में खो चुके थे। He saw another aeroplane had no lights on its wing। तभी उनको एक अनदर एरोप्लेन उसी स्टॉर्म में दिखाई दिया जिसके विंग्स के ऊपर कोई भी लाइट्स नहीं थी। सो द फेस ऑफ द अनदर पायलट। जो नैरेटर हैं उन्होंने दूसरे एरोप्लेन के पायलट के फेस को देखा। द नैरेटर वॉज ग्लैड टू सी अनदर पायलट। अब नैरेटर को बड़ी खुशी हुई जब स्टॉर्म के अंदर उन्होंने एक दूसरे पायलट को देखा। द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन लिफ्टेड हिज हैंड एंड टोल्ड द नैरेटर टू फॉलो हिम। अब जो ब्लैक एरोप्लेन था, जो न्यू एरोप्लेन था, इट वॉज द ब्लैक एरोप्लेन। उसके पायलट ने नैरेटर की तरफ हाथ उठाया और उसको फॉलो करने का इशारा किया एंड टर्न हिज एरोप्लेन टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ नैरेटर्स डेकोटा। और ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने अपने प्लेन को नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ घुमा करके डेकोटा के सामने ले आया। नैरेटर फॉलोड हिम जस्ट लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड। अब नैरेटर ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को इस तरीके से फॉलो कर रहे थे जैसे एक ओबीडिएंट चाइल्ड करता है। डेकोटाज लास्ट टैंक couldn't fly 5 to 10 minutes more। अब डेकोटा का जो लास्ट टैंक चल रहा था फ्यूल का, वो सिर्फ 5 या 10 मिनट्स तक चल सकता था। द नैरेटर फ्राइटेंड। अब नैरेटर को डर लगने लगा। ब्लैक एरोप्लेन स्टार्टेड टू गो डाउन। अचानक से जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था उसने अपने प्लेन को नीचे की तरफ ले जाना शुरू किया एंड नैरेटर फॉलोड हिम। नैरेटर भी उनके पीछे पीछे जाते रहे। सडनली ही केम आउट ऑफ द स्टॉर्म। अचानक से पायलट ने देखा, नैरेटर ने देखा कि वो स्टॉर्म से बाहर निकल गए हैं। एंड सो टू स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स। अचानक से उन्हें 2 स्ट्रेट लाइन्स दिखाई दी जिस पर लाइट जल रही थी। इट वॉज रनवे एंड एयरपोर्ट। जो नैरेटर ने जो 2 स्ट्रेट लाइन्स देखी थी जिस पर लाइट जल रही थी, इट वॉज द रनवे। ये एक रनवे था। रनवे वो प्लेस होता है जहां से एरोप्लेन लैंड करते हैं या फिर टुक ऑफ करते हैं। द नैरेटर टर्न टू लुक फॉर हिज फ्रेंड ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। जो नैरेटर थे उस ब्लैक एरोप्लेन के लिए सर्च कर रहे थे कि उसके अंदर उनके जो फ्रेंड बैठे थे, पायलट थे जिन्हें उनकी हेल्प की थी। द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन स्काई बिल्कुल साफ था, नथिंग वॉज देयर। द नैरेटर लैंडेड एंड वेंट टू कंट्रोल टावर और सेंटर। अब नैरेटर जो है उन्होंने अपना एरोप्लेन लैंड किया और कंट्रोल टावर की तरफ गए। आस्क्ड द लेडी एट द कंट्रोल सेंटर अबाउट द पायलट एंड एरोप्लेन बिकॉज ही वॉन्टेड टू थैंक हिम। अब उन्होंने उस लेडी से पूछताछ की जो कंट्रोल सेंटर में बैठी थी कि जो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट है वो कहाँ है, क्योंकि वो उनको थैंक्स करना चाहते थे, उनका धन्यवाद करना चाहते थे। द लेडी वॉज सरप्राइज। लेकिन वो लेडी बड़ी सरप्राइज हुई। अनदर एरोप्लेन
अप देयर इन दिस स्काई, कि कोई दूसरा एरोप्लेन, और वो भी इतने स्टॉर्म में और आकाश में। शी रिप्लाइड ओनली नैरेटर्स एरोप्लेन वॉज देयर, उसने कहा कि सिर्फ नैरेटर का ही एरोप्लेन वहां पर था, विच शी कुड सी थ्रू द रडार, जो उसको रडार में देख सकती थी। रडार इज अ मशीन जिससे हमें, रडार इज अ इंस्ट्रूमेंट जिससे हमें ये पता चलता है इन विच डायरेक्शन द प्लेन इज गोइंग, कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। नैरेटर वो सरप्राइज, नैरेटर भी बहुत सरप्राइज हुए। हु वाज द पायलट, तो फिर वो पायलट कौन था, वो एरोप्लेन कौन था। Who helped him to arrive safely without compass, without radio and no more fuel। ऐसे वो एरोप्लेन के पायलट कौन थे, या वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था जिन्होंने उनको सेफली एक सेफ प्लेस पर पहुंचा दिया, जब उनके पास कोई कंपास वर्क नहीं कर रही थी, रेडियो वर्क नहीं कर रही थी, और उनके पास और ज्यादा फ्यूल भी नहीं था। तो ही वाज सरप्राइज, ही वांटेड टू नो वेयर वाज द पायलट एंड द एरोप्लेन। This was the mystery in this chapter about the black aeroplane and its pilot. So this is all about the chapter. Thank you very much for listening me. Hope you got it.